वर्कशीट में कोई डाउट? नहीं सर। Okay. So question number 13 from first worksheet. 2x plus 1, 2y, 0, y square plus 1 equals to x plus 3, y square plus 2, 0 and minus 6. So this is your question number 13. Here you have to compare the respective elements. So 2x plus 1 equals to x plus 3. If we solve this, x will come on the left hand side, 2x minus x, and 1 will go on that side, 3 minus 1. X equals to 2. Now if I compare this equation with this equation, 2y equals to y square plus 2, 0 equals to y square, 2y, I am sending 2y on the left hand side, right hand side. This is nothing but y minus 1 का whole square. सर ये 13 क्वेश्चन नहीं है। 13 ही है ना, 13 में तो डाउट था। हाँ सर ये 13 ही है। ये 12 सेकंड। और ये 13th क्वेश्चन 2x plus 1 2y 0 y square plus 1 equals to x plus 3 y 10 0 26. So यहाँ पे ये इसके साथ कंपेयर 2x plus 1 equals to x plus 3, x यहाँ पे 1 यहाँ पे 2x minus x 3 minus 1 x equals to 2 and 2y 10 के साथ इक्वल, so y equals to 5. y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई. They are asking you value of x plus 1. क्वेश्चन में लिखा है x plus y की वैल्यू बताओ. 2 plus 5. अरे सर मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। ये 10 और 26 की जगह y square plus 2 और minus 6 लिख दिया था, तो मेरा गलत आ गया। Okay, no problem. Second worksheet. Any doubts from second worksheet one by one? No. नो No. So then we will move to multiplication today. First, we'll understand scalar multiplication. So scalar multiplication is nothing but when you multiply a number, a single number with the entire matrix. Let's say आपके पास एक matrix है. And if you want to multiply this entire matrix with a number, जैसे ये A, if someone is telling me find 5A, 5A, तो 5A का मतलब 5 is getting multiplied with the entire matrix. 5 is getting multiplied with the entire matrix. When this 5 enters inside the matrix, it will be getting multiplied with each element. It will be multiplied with each element. Simple. Scalar multiplication is very easy. जो बाहर नंबर है अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, नथिंग एल्स. जो बाहर नंबर है वो हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, दिस इज योर scalar multiplication. Now 1 minute. Which questions? Properties of scalar multiplication. Properties of scalar multiplication. If you are multiplying a number with sum of two matrices, आपके पास दो matrices है, दोनों को ऐड करने के बाद आपको k से मल्टीप्लाई करना है. Instead of that, you can also do this. You can multiply first, इस k को आपने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया and then आपने ऐड कर दिया. So this is allowed. So this is allowed. K
multiplied by a plus b will give you ka plus kb. Same thing is allowed in subtraction also. Same thing is allowed in subtraction. Same thing is allowed अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है। अच्छा चलो ये दो है, एक मिनट, और जो प्रॉपर्टीज है वो तो बहुत सिली प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी। लेट मी सी इफ देयर इज सम एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोस्टली दे आर वेरी इजी, देयर इज नथिंग। चलो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग है, वैसे इट इज आल्सो वेरी इजी। लेट्स से वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस, आपको दो मैट्रिसेस ऐड कर दिए x एंड y एंड द आंसर इज 5 2 0 9, and there are another two matrices, their difference is 3 6 0 minus 1, and question says find value of x and y। आपको x, कैपिटल X जो आपका मैट्रिक्स है और कैपिटल Y जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है। सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है यहाँ पे, यू अप्लाई सिंपल लॉजिक एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट। जैसे आप अपने 10th स्टैंडर्ड में इक्वेशंस x plus y की कुछ वैल्यू दी है, x minus y की कुछ वैल्यू दी है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें x plus y and x minus y, if you add them what will happen? Plus y minus y cancel and here you will be getting 2x. So basically if you add them, if you add equation 1 and 2, on adding 1 and 2, x plus y and x minus y, plus y minus y will get cancelled out, 2x equals to sum of these two matrices 5 and 3, 2 and 6, 0 and 0, 9 and minus 1. I'm getting this thing. Now this 2 can be sent on the opposite side and it will become 1 by 2. It will become 1 by 2. अब इसको कंसीडर तो ये करेंगे कि 1 by 2 अंदर मल्टीप्लाई है, we will not consider कि डिवाइड हो रहा है, we will never say कि 2 से डिवाइड करना है, we will say हाफ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, because हाफ क्या है, एक नंबर है, तो इट्स अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इट्स अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो नंबर है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, half into 8, half into 8, half into 0 and half into 8, so ये आपको x मिल गया। once you have values for x आप y भी इजीली ढूंढ सकते हो, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू इज 4 4 0 4 प्लस y इक्वल्स टू 5 2 0 9। नॉर्मल मैथमेटिक्स कैसे होता है, मैट्रिसेस भी ऑलमोस्ट वैसे ही चलता है, यहाँ पे ये एडिशन में, वहां जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 5 0 2 9 minus, this will go in subtraction, 4 4 4 0. When we subtract, 5 minus 4 is 1, 2 minus 4 is minus 2, 0 minus 0 is 0 and 9 minus 4 is 5. So this is how you can easily find out x. Is it clear? Any doubts? No, No, sir. Let me give you another question. If a equals to this and b equals to find 5a minus 2b, find this। सब अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। सर डन।
Done. Okay. Tell me your answer. -5, 10, 25. And you should also write DAIG, diagonal. So I think 5 5s are -5, right? 2 5s are 10, right? And 3 5s are 15, 15 minus. Very good, right? Correct. तो सेम आ रहा है. Good. Okay. One more question. मैंने आपको एक टाइप करा दिया, अब आप ट्राई करो ये कौन क्वेश्चन. Find x and y if x is like 2x plus y is 4 4 7 4 4 7 7 and x minus 2y is -2 -3 1 -1 2. चलो लॉजिक में आपको समझा चुका हूं, राइट. x and y की वैल्यूज फाइंड कर ली है. 2x plus y is given, x minus 2y is given. कैसे करेंगे? 10th स्टैंडर्ड में जो आपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वो सब सीखा था, वो लॉजिक लगा रहे हैं. यहाँ पे क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट वैल्यू ऑफ, इनमें कोएफिशिएंट सेम बनाओ. सबसे पहले सोचो. ऊपर या नीचे वाले को इंटू 2 करेंगे. If you multiply this by 2, ये हो जाएगा 4x 2y और इसमें हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई, फिर नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा. थोड़ा एक्टिव रहोगे तो 12th का मैथ्स 11th से इजी लगेगा. थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा. जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में 100% फोकस. x है 1 2 3 3 1 2. Once again 1 1 2 3 3 1 2. y है 2 0 1 1 1 0. anyone else? So let me check. 201 110 and 123 312. Very good. Correct. सर सेम. सर सेम आ रहा Good. चलो वेरी गुड. एटलीस्ट आप लोगों को ये सब चीज आती है, वरना मुझे इसमें इतना टाइम वेस्ट करना पड़ता कि ये समझाना पड़ता ये क्या है, एलिमिनेशन कैसे होता है. गुड. चलो आप लोग के बेसिक्स क्लियर है. चलो अब एक क्वेश्चन बनाते हैं. It's a word problem. In a city, there are 25 secondary teachers. In a city, there are 25 secondary teachers. Each school has, question बहुत easy होगा. Each school has, मेरे को सिर्फ आपको type of question बताना है इसके लिए. Each school has 28 teachers, 7 clerks, and 6 peons. Find total number of teachers. बहुत ज़्यादा easy है. Clerks and peons. बट आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है और कुछ नहीं. इन ऑल स्कूल्स. सो इन अ सिटी देयर आर 25 secondary schools. Each school has 28 of this, 7 of this, and 6 of this. So how to do in matrix form? So either you can make a column matrix, a row matrix, या column matrix. इसमें आप क्या करोगे? आप मेंशन कर दोगे पहले आगे के नंबर टीचर्स के,
फिर क्लर्क के, फिर पियून के. This is for one school, and then you are having 25 schools in your city. So this is a scalar multiplication, 25s. So 25 into 28, 7, 6. And we multiply this, we'll get the answer. So this will be 700. This will be 175 and 150. 150. The question was very simple, but सर yes, 1/25 calculation error है क्या? डिवाइड में जाएगा तो यस सर. सर क्योंकि पूरे सिटी में 25 सेकेंडरी टीचर्स ही है. Oh, sorry. My mistake. There are 25 secondary schools. Divided, ये s की वैल्यू है और हमें 25s ढूंढना है. तो 25 into s की वैल्यू and I'm getting the answer. Let me check if there's some difficult one. नहीं, बाकी सब बहुत इजी है. चलो, अब मेन चीज स्टार्ट होगी. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. हस्ती एंड वर्ष आप लोग को आता है ऑलरेडी. महक एंड दीप, कंप्लीटली न्यू फॉर यू. तो ये धीरे-धीरे अच्छे से रूल सुनना. फर्स्ट 2-3 सम्स लगेंगे आपको, देन यू विल बी वेरी क्लियर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. एडिशन सबट्रैक्शन वाज वेरी इजी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाज वेरी इजी. उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, उसमें रूल ही अलग है. दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होते हैं? सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 0 2, and here I am having another matrix 4 5 6 7 0 2. Order of this matrix 1 2 3, 3 cross 2. Order of this matrix is 3 cross 2. Order of this matrix is 2 cross 3. Two matrices can only be multiplied. How they will multiply वो तो और अलग रूल है, वो तो अभी मैं समझाऊंगा. बट सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, उसका रूल समझा. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स किसके, जो पहले लिखा है, दिस इज A and this is B, and if you want to multiply A and B, if you are having two matrices A and B and you want to multiply two matrices A into B, यहाँ पे याद रखना, it is not same. It is not normal multiplication. Normal numbers में 4 5s are 5 4s are same होता है, but matrices में ऐसा नहीं. A cross B will be very different answer, and B cross A will be very different answer. इतना different कि इसकी size ही अलग होगी. सबसे पहले we are trying to find A cross B. A cross B possible है या नहीं, वो कब होता है? जो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट जिसका नाम पहले लिखा है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल जो बाद में लिखा है उसके नंबर ऑफ रोज. ओनली देन मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल. ओनली देन both matrix या both matrices can be multiplied. So basically ये होता है फर्स्ट A का, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड इन B दिस इज नंबर ऑफ रोज. If these two numbers are equal, only then multiplication is possible. So here the particular situation I have taken, यहाँ पे multiplication possible. अब इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा दिस एंड दिस. आंसर जो आने वाला है उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3. मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है. इसमें बोला 2-3 सम तो आपको सिर्फ समझने में जाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो. ओके, हाउ टू मल्टीप्लाई. सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, पहले आपको इसका ऑर्डर लिखना है, फिर इसका ऑर्डर लिखना है. जो आगे है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो बाद में लिखा है A क्रॉस B फाइंड कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी मल्टीप्लाई आपको बताना पड़ेगा B क्रॉस A या A क्रॉस B. राइट नाउ आई एम डूइंग A क्रॉस B. नंबर ऑफ कॉलम्स एंड यहां के नंबर ऑफ रोज, इफ दे आर इक्वल
then you are allowed, it is only allowed now, इसको कैलकुलेट करेंगे. How to calculate? यहां से आपको लेना है रो. This row will be multiplied with this column. फर्स्ट मैट्रिक्स में हमेशा आपको लेने होंगे रोज. मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब ये आगे लिखा है इसलिए ए क्रॉस बी हम फाइंड कर रहे हैं. तो जो ए है उसमें से हमेशा आपको लेने होंगे रोज ड्यूरिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और जो सेकंड है उसमें हमेशा लेने होंगे कॉलम्स. एंड अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? दिस एंटायर रो विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एंटायर कॉलम रिस्पेक्टिवली. 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ. ये सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ये एक एलिमेंट होगा. आराम से, कोई जल्दी नहीं है. मैं आपको अलग अलग मेथड्स अलग अलग पैटर्न्स सब समझाऊंगा, बट एकदम स्टार्ट इसको बीच में से करना पड़ता है, इसका कोई फ्लो नहीं है. ये पर्टिकुलर रो कौन सा है? फर्स्ट रो. फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? फर्स्ट कॉलम से. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है 1 1, तो वो जो न्यू मैट्रिक्स है उसकी 1 1 वाली पोजीशन होता है. देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो यहां से हमेशा रो लेना होता है और यहां से कॉलम. जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो वो न्यू मैट्रिक्स के सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में होता है. सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहां पर, यहां पर 3 into 5 plus 4 into 0 रिस्पेक्टिवली. यहां से आपने ये लिया, यहां से ये लिया. फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ. कहां रखना है ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. उसका बहुत सिंपल लॉजिक है. बहुत बच्चे ये चीज यहां लिख देते हैं. यहां पर क्या याद रखना है? सेकंड रो फर्स्ट सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर. मैंने सेकंड कॉलम लिया है, माय मिस्टेक. आई एम टेकिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. मुझे ये ले लेना, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. इस पूरे में सेकंड रो मतलब ये वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन, और फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाली. तो एट दिस पोजीशन आई शुड 3 4s are 12, 4 7s are, ये पूरा एक एलिमेंट है. ऐड होके ये पूरा एक एलिमेंट हो जाएगा. Now third row first column, third row first column. तो यहां पे कहा जाएगा third row first column. यहां पे लिखना 0 into 4 0, 2 7s are 4. इनको सिंपलीफाई कर देते हैं. 4 1s are 4, 2 7s are 14, 14 plus 4 18, 12 plus 28 40, and 0 plus 14 0 14. Now I want to find this position. ये पोजीशन क्या है? मुझे एलिमेंट ढूंढना है. तो ये क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो वो कैसे मिलेगा? टेक फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. यहां का फर्स्ट रो यहां के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, थोड़ा वियर्ड लगेगा. 2-3 सम्स आपको करने पड़ेंगे तो ही क्लैरिटी. 1 into 5, 2 into 0, 0 5 आंसर. अगर मुझे ये एलिमेंट ढूंढना है, सो दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. यहां से रो ले लो फर्स्ट और यहां से कॉलम ले लो थर्ड. यहां का फर्स्ट रो और यहां का सेकंड कॉलम, वो ये वाला एलिमेंट देगा. 1 6s are 6, 2 2s are 4, 6 plus 4 10. If I want to find this element, मैं अभी randomly कर रहा हूँ, लाइन में नहीं जाता हूँ. ये वाला तो मुझे ये ढूंढना है. So this is third row, second column. So take third row from here, second column from here. 0 into 5 0, 2 into 0 0. ये तो 0 ही हो गया. If I want to find this element, this is second row, third column. Second row, third column. 3 6s are 18, 4 2s are 8, 18 plus 8 26.
I want to find this one. Second row, second column. Second row, second column. 3 5s are 15, 4 zeros are 0, 15. I want to find this one. Third row, third column. यहाँ का third row, यहाँ का third column. 0 6 are 0, 2 2s are 4. Deep and Mahek, did you get some idea या बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया? No, got idea. I'll take an easy one now. ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया. अब एक easy वाला देते हैं. Suppose I have a matrix A 1 0 4 2 and another matrix 2 5 6 3. First, if they are asking you multiply A and B, A cross B, दोनों मैट्रिक्स है. पहले आपको ऑर्डर बता दूं. This is 2 cross 2. This is 2 cross 2. Multiplication is only possible जब आगे वाले के number of columns and पीछे वाले के number of rows they are equal. If they are equal, only then you will start multiplication. माने आप लिख दोगे multiplication not possible. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? मैं सीक्वेंस में जाऊंगा. पहले आप खाली बॉक्स बना दो. अच्छा, ये खाली बॉक्स की साइज किस हिसाब से बनाओगे? कितना बनाना है? 3 क्रॉस 3 बनाना है, 2 क्रॉस 2 बनाना है. उसके लिए मैंने आपको ये बताया. यहाँ जो आगे लिखा है और यहाँ जो पीछे लिखा है ना, वो आंसर का ऑर्डर है. वो आंसर का ऑर्डर है. 2 क्रॉस 2 मतलब आपका ये जो बॉक्स है ये 2 क्रॉस 2 होगा. इसमें 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं. कैसे आएंगे ये एलिमेंट्स? सबसे पहले मैं जनरली स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. जो आगे नाम लिखा है उसमें हमेशा सिर्फ रोज लेने होते हैं. इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो. और जो पीछे सेकंड लिखा है वहां से हमेशा कॉलम्स लेने होते हैं. अब कंफ्यूजन नहीं होगा. यहाँ का फर्स्ट रो और यहाँ का फर्स्ट कॉलम तो वो ये एलिमेंट है. 1 2s are 2, 0 6 are 0, तो 2 ही. फिर मुझे अगर ये एलिमेंट फाइंड करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 1 5s are 5, 0 3s are 0. This one second row first column. यहाँ का second row और यहाँ का first column. 4 2s are 8, 2 6 are 12. ये ऐड होता है. You have to add them. 8 plus 12 20. Second row second column. तो यहाँ से second row, यहाँ का second column. 4 5s are 20 and 2 3s are 6. So this is A cross B. मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन अब मैं B क्रॉस A भी करके बताऊंगा. B क्रॉस A और A क्रॉस B का आंसर एकदम अलग आएगा. Any doubts in this one? सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 6 आएगा ना? First row सेकंड कॉलम. First row second column. 1 5s are 5, 0 3s are 0, 5 आएगा. हाँ. Now suppose if I want to multiply with the same matrix, I want to find B cross. B cross. तो सबसे पहले वापस क्वेश्चन ये सब नंबर्स ठीक है और बाकी चीजें मिटा देते हैं. B पहले लिख देता हूँ. And A B क्रॉस A में आप पहले ऑर्डर लिखो. इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2. अच्छा ये भी होंगे. I'll give you some questions where A क्रॉस B पॉसिबल है और B क्रॉस A पॉसिबल ही नहीं है. ये भी चांसेस होते हैं. B पहले लिखना है, पहले लिखा है तो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज. या तो आप ऐसे याद रख लो अंदर वाले. ये यहां से अंदर है, यहां से अंदर है. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. इफ दे आर इक्वल तो पॉसिबल है. If they are equal तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और जो आंसर आएगा वो ये और ये 2 क्रॉस 2 आएगा. आंसर विल बी 2 क्रॉस 2.
Now let's multiply. हमेशा जो पहले लिखा है उसमें ना ये बना दो, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे बना दो रोज और यहाँ पे बना दो कॉलम्स। 2 into 1 and 5 into 4. First row, first column. First row, first column. 2 ones are 2, 5 fours are 20, 22. Suddenly, अच्छा बहुत क्वेश्चन पे ये भी हो सकता है, आपको सब फाइंड नहीं करना है, they are only asking you this element. तो इसलिए मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस में जाना कंपलसरी नहीं है। ये एलिमेंट की जगह देखो क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ का सेकंड रो यहाँ का सेकंड कॉलम, बस that will give you this position. 6 zeros are 0, 3 twos are 6, प्लस कर दिया तो 6. I want to find this one, first row second column. First row second column. 2 zeros are 0, 5 twos are 10. 0 plus 10. And this one, second row first column. Second row first column. 6 ones are 6 and 3 fours are 12. 6 ones are 6 plus 3 fours are 12, 18. 22, 10, 18 and 6. As simple as that. 22, 10, 18 and 6. They don't have any similarity. A cross B और B cross एकदम अलग है। ये तो फिर भी easy question है क्योंकि इसमें एटलीस्ट ऑर्डर सेम है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऑर्डर ही अलग। Let me know. Can I multiply them? Is it possible to multiply these matrices? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे ऑर्डर है No. cross 3. Here order is 2 cross 3. 2 rows, 3 columns. And here order is 3 cross 1. 3 रो 1 कॉलम। पहले ऑर्डर लिख लो, फिर मैंने आपको अच्छा मेरी तरफ से मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है कि नहीं, आई कैन नॉट आस्क दैट, आई शुड आस्क ए क्रॉस बी पॉसिबल है या नहीं, या बी क्रॉस ए पॉसिबल है या नहीं। ए क्रॉस बी, अच्छा बी क्रॉस ए यहाँ पे पॉसिबल होगा? No, sir. No. So this will not be possible. So we can have this type of questions where if we reverse the position, answer completely changes. It is not possible because B का number of column और A का number of rows, they are not equal. B cross A is not possible, but this is possible. अच्छा possible तो है. Can you tell me what will be the order of A cross B? 2 into 1. 2 cross 1, very good. तो 2 cross 1 ड्रॉ करता हूँ। मैं जो सब बच्चों को एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ, देखो everyone should do this thing. ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मिस्टेक कर दोगे, you will never realize, आप कुछ अलग ही मल्टीप्लिकेशन करोगे। लेकिन अगर आप पहले से ये बॉडी रेडी रखोगे, बॉडी का मतलब 2 cross 3, 3 cross 1, 3 और 3 सेम है, ये 2 ये 1, तो ऑर्डर आपको पता है। ऑर्डर पता है तो पहले से बॉक्स बना के रेडी रखो। ये अभी आपने स्टार्ट किया है इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ ये तो करना ही, बट जैसे जैसे आप सीख जाओगे ना, फिर ये सब करना बंद कर देते हैं और उसमें मिस्टेक होने के चांस होते हैं। चलो हाउ टू मल्टीप्लाई, पहले A क्रॉस B है तो A के रोज सिलेक्ट कर लो और B का कॉलम, ये बहुत इजी है। चलो दीप, यू टेल मी फर्स्ट एलिमेंट एंड माइक यू टेल मी दिस एलिमेंट। $69. 24 and 35, 59. Mahek? 86.
86 गुड डन। अच्छा एक और क्वेश्चन, ये तो होगी वेरी गुड आपने इफ आई गिव यू, एक ही मैंने मैट्रिसेस दिया आपको, and I tell you find a square. So first of all tell me, is it possible to find a square in this situation? Simple logic है। No. यस No. सर ए स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर शायद। स्क्वायर नहीं, Not possible है। a का a क्रॉस a स्क्वायर का मतलब a into a, एक a लिखा हुआ है, एक और a लिखो यहाँ पे, फिर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे ये दोनों मीन सेम नहीं है, so it is not possible, not possible. In fact, square is only possible in square matrix. Square is only possible in a square matrix. देखो अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता, ओनली देन आई कैन से ना ये दोनों सेम आएंगे। आप लॉजिकली सोचो, दोनों सेम मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने का क्या मतलब है? इसके नंबर ऑफ कॉलम और रो दोनों सेम है ना, क्योंकि मैट्रिक्स तो वो का वही है, और उनके सेम होने का मतलब इफ दे टू आर सेम दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं होता है। चलो नाउ फाइंड एक यूनिट मैट्रिक्स का a into b और b into a सेम ही होगा। ये नहीं होगा, करेंगे वो बाद में मीटिंग एंड हो तो आपको ज्वाइन करेगा राइट। अभी आप a क्रॉस a स्क्वायर फाइंड करेगा, मुझे बताओ आंसर। एवरीवन गिव मी वन एलिमेंट, सबका नाम मैंने लिख दिया है, सब एक एक एलिमेंट बताओ।